Okay, welcome students to learning session number 8, which probably is going to be our last learning session for this chapter, which is chapter number 4, Environmental Management of Science 2. So in this chapter, these are the things we have already seen so far. Okay, I'm not going to read them all out, but what I want you to do in the next few minutes is read everything and just try to check if you all can remember its meaning. So when you read the word ecosystem, can you recall कि इसका definition क्या है? When you read the word food chain, can you recall उसका definition क्या है? So on and so forth. सबका meaning तुम लोग को याद आ रहा है क्या? Because this is the end of our chapter, right? So अब तक सब कुछ बाहर हो जाना चाहिए था. So when you read any of these, you all should remember at least something about it. Okay. So feel free to pause the video, go through each and everything and try to check if you can remember each and everything. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and go through each and every of them and try to recollect. So okay, I hope everyone has paused the video and tried to recollect. अगर या कुछ याद नहीं है, I hopefully you all also went back to your notes and tried to see उसका meaning क्या था. We are going to move ahead. These are the topics we are going to cover today. First is classification of threatened species. Then we're going to see what is the red list, and lastly we're going to see disaster and its management. These are the new words we're going to learn today. First is pandemic, जो भी चल रहा है पूरी दुनिया में. Then endemic, drought, famine, poaching. Okay, these are the new words we're going to learn today. So first topic we are going to learn is classification of threatened species. Okay, so threatened मतलब क्या? Threatened यानी डराना. Okay, so अगर कोई तुम लोग को ऐसा चाकू लेके धमका रहा है, डरा रहा है, well in English we will say that you are being threatened. Threatened यानी तुम लोगों को कोई धमकी दे रहा है, कोई डरा रहा है. Okay, so that's the meaning of threatened. Threatened species यानी क्या होगा फिर? Threatened species यानी खतरा है, डर है कि ये species खत्म होने वाले. Okay, so threatened species मतलब क्या? there is a possibility कि species खत्म होने वाला है, इसका डर है, इसलिए उसको threatened species बोलते हैं. Okay, so threatened species बहुत सारे types है, बहुत सारे as in 4 types है to be accurate. So first type है endangered species. Okay, endangered species. तो उसका मतलब क्या है? Either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in the near future. Okay, दो options हो सकते हैं. पहला option क्या है? नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइन. इसका जो नंबर है स्पीशीज का, उसका नंबर बहुत कम हो गया, उस स्पीशीज के एनिमल्स बहुत कम हो गए, या फिर उस स्पीशीज के प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स बहुत कम हो गए. ये पहला रीजन हो सकता है. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? दैट हैबिटेट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट. हैबिटेट यानी कि हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट? हैबिटेट यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल घर. तो अगर लायन टाइगर होगा तो उनका घर क्या है? उनका घर है जंगल. सो जंगल इज देयर हैबिटेट. सो उनका हैबिटेट श्रिंक हो गया. श्रिंक का पास्ट टेंस श्रंक होता है. ओके, श्रिंक हो गया यानी कम हो गया. तो समझो अगर हमने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का थोड़ा सा साइड को हमने कट कर दिया और वहां पे बिल्डिंग्स बना दिया या फिर कोई इंडस्ट्री बना दिया, तो उनका जो घर था इतना बड़ा था, उतना बड़ा होने से अभी और छोटा हो गया, राइट? सो श्रिंक हो गया. सो या तो नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स हैज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट हैज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर. कि भाई बहुत कम समय में वो लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. ओके, इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड. कब एक्सटिंक्ट होंगे? अगर उसको कंजर्व करने के लिए कोई मेजर नहीं ले रहे हम लोग, तब वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. ओके, इसके दो एग्जांपल्स दिए, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन. ओके, तो मैंने इन दोनों के फोटोज अटैच किए. सो दिस इज योर लायन टेल्ड मंकी. इफ यू कैन सी, इसका जो टेल है वो लायन की तरह दिख रहा है. एंड नेक्स्ट is a lesser florican, ये राइट साइड में. ओके, लेट अस मूव अहेड. अभी इनको देख के लो, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर दे कुड वेरी वेल बी एक्सटेंक्ट. ओके, तो तुम लोग को शायद ये देखने ना मिले नियर फ्यूचर में. ओके, सो नेक्स्ट इज रेयर स्पीसीज. ओके, सो रेयर स्पीसीज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड. इनका ये जो ऑर्गेनिजम्स के नंबर थे पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया. ठीक है, organisms of these species may be endemic. Being endemic may become extinct very fast. Endemic मतलब क्या? So basically endemic किस वर्ड से एकदम पास वाला लगता है?
पैंडेमिक। ओके, हम लोग अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उसको बोलते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक कब होता है? जब कोई तो एक बीमारी पूरे के पूरे कंट्री में या पूरे के पूरे दुनिया में फैल जाता है। सो हमारे केस में कोरोना वायरस का जो डिजीज है वो पूरे के पूरे कंट्री में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल गया, इसलिए हम लोग पैंडेमिक बोल रहे हैं। ओके, सो पैंडेमिक और एंडेमिक ये सब का कोई संबंध नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट, इसलिए मैंने वो पैंडेमिक भी वर्ड ऐड किया, जस्ट सो दैट यू शुड नो। ओके, सो एंडेमिक वर्ड का क्या मतलब है? एंडेमिक यानी वो लोग अपने ही एरिया में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। ओके, सो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो एकदम छोटे से एरिया में रहते हैं, उस एरिया के बाहर नहीं मिलते हैं, उसको बोलेंगे एंडेमिक। ओके, सो अगर ऐसा केस होगा कि कोई तो एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो बस एक ही एरिया में मिलता है और वहां से वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो कहीं दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिलेगा वो, इसलिए बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयर स्पीसीज। रेयर यानी बहुत इजीली नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह पे होते हैं इसलिए इजीली नहीं मिलेंगे। ओके, सो व्हाट आर रेयर स्पीसीज? जिसका नंबर काफी कम हो गया है एंड वो एंडेमिक होने की वजह से बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसके अगेन दो एग्जांपल्स दिए, रेड पैंडा एंड मस्क डियर। अगेन आई हैव अटैच्ड फोटोज ऑफ दीज टू। दिस इज रेड पैंडा एंड दिस इज मस्क डियर। मस्क डियर और नॉर्मल डियर में क्या फर्क है? यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे हो एलिफेंट जैसे दांत, एलिफेंट के दांत जैसे बाहर आते हैं वैसे ही कुछ बाहर आ रहा है, उसको बोलेंगे मस्क। ये फर्क होता है मस्क डियर में। अगेन बोथ ऑफ देम आर रेयर स्पीसीज। पता नहीं ये कितने सालों तक जिंदा रहेंगे, मे बी कुछ सालों में दिखेंगे भी नहीं हम लोग को। सो अभी जितना देखना है देख के लो। ओके, नेक्स्ट वल्नरेबल स्पीशीज। ओके, वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। ओके, सो वल्नरेबल स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। कि एक्सट्रीमली लेस बहुत ज्यादा कम है और अभी भी बहुत तेजी से उनका नंबर कम होते जा रहा है। कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन, क्योंकि अभी भी उनका जो नंबर है वो काफी तेजी से कम हो रहा है, इसलिए वो काफी चिंता वाली बात है। वरीसम यानी चिंता वाली बात। ओके, वरीसम इट्स मेड फ्रॉम द वर्ड वरीड, WORRY, वरीसम रीजन। ओके, सो इसका एग्जांपल है टाइगर एंड लायन। अगेन आई हैव अटैच्ड फोटोज। दिस इज द टाइगर, this is a lion. I hope you all knew that. Okay, and I don't know why I explained कि ये lion है और ये tiger है, but anyway. Okay, next is interminate inde next is indeterminate species. Okay, it is indeterminate species. So इसका क्या मतलब है? These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite substantial information. ठीक है, so ये जो organisms है इनको देख के लगता है कि endangered है। endangered क्या था? यहाँ पे देखा है ना हमने, endangered यानी इनका नंबर बहुत ज्यादा कम है और इनका हैबिटेट श्रिंक हो गया है और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, सो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज कौन से? इनडिटर्मिनेट स्पीशीज वैसे है जो एंडेंजर्ड लगते हैं बट कुछ बिहेवियर हैबिट्स की वजह से उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। एग्जांपल कह दिया शाइनेस, कि वो बहुत शर्मीले होते हैं। शर्मीले होंगे तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा बाहर घूमेंगे नहीं, जो अपना एक ट्री है या फिर अपना एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है उसके अंदर ही छुप के रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। ओके, सो अगर ऐसा कोई बिहेवियरल हैबिट है, हम लोग को इजीली दिखेंगे नहीं वो, इसलिए डेटा अच्छा मिलेगा नहीं। हम लोग को लगेगा कि वो बहुत एक्सटिंक्ट होने के पास में है, बट हो सकता है कि अंदर किसी डीप फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे हैं छुप के बैठे हैं, क्योंकि उनकी आदत है छुपना। तो इनके बारे में ज्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं है। सो नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल यानी जो कुछ प्रूव कर सके। ओके, सब्सटेंशियल यानी जो कुछ प्रूव कर सके। तो कोई डेफिनेट या सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इनके बारे में पक्का बता नहीं सकते, इसलिए इसको बोल रहे हैं इनडिटर्मिनेट। हम लोग पक्का बता नहीं सकते। डिटर्मिनेट यानी मुझे पक्का पता है, इनडिटर्मिनेट यानी मुझे पक्का पता नहीं है। ओके, सो इसका एग्जांपल दिया है जायंट स्क्विरल, और इसका एक निकनेम भी है, निकनेम है शेकरू। ओके, सो दिस इज द फोटो ऑफ शेकरू। सो अगेन हमें पता नहीं एक्सटिंक्ट होने वाला है कि नहीं, देख के तो लग रहा है एक्सटिंक्ट हो सकता है, बट शायद बहुत सारे ऐसे शेकरू कहीं पे तो छुप के बैठे और हमें बहुत अच्छा डेटा नहीं मिला उनके बारे में। ओके, सो दिस इज शेकरू, जायंट स्क्विरल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी रेड लिस्ट। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? IUCN। व्हाट इज इट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
Nature, IUCN, prepares the red list that contains the name of endangered species from different countries. Okay, so ये एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट को बोलते हैं रेड लिस्ट. और रेड लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज में से कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसका एक लिस्ट बनाते हैं ये लोग. उस लिस्ट में दो कलर के पेजेस हो गए, दो टाइप के पेजेस हो गए, एक होगा पिंक पेजेस और एक होगा ग्रीन पेजेस. पिंक पेज में क्या होगा, पिंक पेज में होगा एंडेंजर्ड स्पीशीज का लिस्ट, और ग्रीन पेजेस में क्या होगा, प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पीशीज. तो पहले जो ऑर्गेनिजम्स एंडेंजर्ड थे बट अभी क्योंकि उसको कंजर्व करने के लिए मेजर्स लिए गए, उसके बाद अभी वो सेफ हो गए, उनका नंबर बढ़ गया. ऐसे ऑर्गेनिजम्स का लिस्ट कहाँ पे होगा, ग्रीन पेजेस पे. सो व्हाट डू वी वांट, हम लोग के लिए क्या अच्छा होगा, ये जो पिंक पेजेस है उसका नंबर कम होते जाए, पिंक पेजेस में जो लिस्ट है वो छोटी होती जाए, और ग्रीन पेजेस में जो लिस्ट है वो बढ़ते जाए. ओके, पिंक पेजेस में लिस्ट कम हो रही है उसका मतलब क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज कम हो रहे हैं. ग्रीन पेजेस में लिस्ट बड़ी हो रही है, यानी पहले जो एंडेंजर्ड थे जिसका नंबर बहुत कम हो गया था, अभी धीरे धीरे वो सेफ हो गए क्योंकि हम लोग ने उनको सेफ करने के लिए मेजर्स लिया. So this was about red list. Another very interesting thing written in your textbook was World Wildlife Fund. Okay, WWF. WWF या तो World Wrestling Federation हो सकता है या फिर World Wildlife Fund हो सकता है. Okay, so World Wildlife Fund WWF published a survey in 2008. 2008 में एक सर्वे पब्लिश किया था. उसके हिसाब से according to it 30% of animal species, 30% of animal species have become extinct over a period of just 35 years, 1975 और 2005 में. Let me repeat this, 2008 में. So 12 साल पहले एक लिस्ट ये लोग ने बनाया था, और उस लिस्ट के हिसाब से 30% जो एनिमल्स के स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गए सिर्फ 35 सालों में, 1975 से 2005 में. तो अगर समझो इसी रेट से हम लोग पोल्यूशन बढ़ाते गए, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फ्यूचर में कितने और स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. अगर सिर्फ 35% में हम लोग 30% खत्म कर सकते हैं, तो और कुछ सालों में इसी स्पीड में अगर सब कुछ एक्सटिंक्ट होते रहा तो फ्यूचर में क्या होने वाला है. दैट्स अ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, एंड इट आल्सो टेल्स कि अभी कितना इंपॉर्टेंट है और इट्स द नीड ऑफ द आवर, कितना अर्जेंट है कि हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान दें. आज भी हम लोग प्लास्टिक के बैग्स यूज करते हैं, आज भी हम लोग पंखा चालू करके भूल जाते हैं, आज भी हम लोग सस्ती गाड़ी खरीदते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन आएगा, आज भी हम लोग बहुत सारे कोल के पावर प्लांट्स यूज कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, एंड एज अ सेड इसको अगर तुम लोग को सॉल्व करना है, इट्स अ वेरी गुड सेक्टर और वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर यू ऑल. अगर तुम लोग को एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा passionately feel करते हो तुम लोग, तो you all can become nuclear engineers, you all can become solar engineers, you all can become advocates for green energy. बहुत सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो. आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों जगह में इस सेक्टर में, इस फील्ड में तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो. और अगर तुम लोग ने कुछ नहीं किया तो अपना फ्यूचर गया. ओके, किसी ना किसी का तो करना पड़ेगा. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, next we are going to see a few questions given in your textbooks, okay, at the end of the textbook. The first question is, which are the reasons for endangering the many species of plants and animals? इतने सारे plants and animals क्यों endanger हो रहे हैं, उसका reason क्या है, and how can we save them? Okay, so this is the answer. This is just the first part of the answer. Okay, second part next slide में. So it's a long answer. So following are the reasons for plant and animal species to become endangered. First है natural cause. Okay, nature की वजह से ही कुछ animals और plants के species endanger हो जाते हैं. Natural cause के examples क्या है, earthquake एक example है, volcanic eruption एक example है, flood एक example है, drought and famine. So drought और famine में क्या फर्क है? It's a very interesting question. Okay, not every student knows this. So drought मतलब I think we had seen in a previous video. Drought मतलब बहुत लंबे समय के लिए अगर बारिश नहीं हुई है या फिर बहुत कम बारिश हुई है तो पानी की कमी होने वाली है, उसको बोलेंगे हम लोग ड्रॉट. ओके, बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुई है फिर बहुत कम बारिश हुई है, उसको बोलेंगे ड्रॉट. तो famine क्या होता है? So famine क्या है? Famine is basically
स्कैरसिटी ऑफ फूड, बहुत खाने की बहुत कमी है। जनरली ड्रॉट के साथ फैमिन भी होता है, क्योंकि अगर ड्रॉट होगा तो एग्रीकल्चर करने में दिक्कत आने वाली है। अगर एग्रीकल्चर करने में दिक्कत आ गई तो फूड ग्रो नहीं होने वाला, तो उस एरिया में फैमिन आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सो जनरली ड्रॉट और फैमिन एक साथ आते हैं, बट फैमिन यानी खाने की कमी है, ड्रॉट यानी बहुत टाइम से बारिश अच्छे से नहीं हुई है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. Second point is man-made causes. Man-made causes, again, we have seen in detail a lot, so I'm going to quickly go through all of them. Okay. Over utilization of resources, यानी बहुत ज्यादा resources use करना. It is a major cause for endangering many plant and animal species. ये बहुत important reason है. Extensive cutting of trees, बहुत ज्यादा forest के trees को cut करना. Overgrazing, जो कुछ भी तुम्हारे animals होंगे जिसको तुम लोग domesticate करते हो, goat, cows, etc. अगर वो लोग बहुत ज्यादा एक एरिया में ग्रास को खा लेंगे, उससे भी स्पीशीज एंडेंजर हो सकते हैं. ओवर फिशिंग, एक पॉन्ड है उसमें से तुम लोग ने बहुत ज्यादा मछलियों को पकड़ लिया तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, एक्सेट्रा, लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज. So again, we have seen this point many times in detail. I'm not going to explain it in detail. Next, environmental pollution. Again, we have seen in a lot of detail why environmental pollution leads to problems for the environment. So pollution of air, water and soil leads to depletion of wildlife. Next is hunting. Poaching for meat, skin, fur, horns, etc. Poaching ये word का मतलब क्या है? Poaching यानी अगर मैं किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ जहां पे मुझे जाना नहीं चाहिए ताकि मैं किस वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर सकूं, दैट इज नोन एज पोचिंग. ओके, सो गोइंग इन अ प्लेस वेयर इट इज इलीगल फॉर मी टू गो, जहां पे जाके मैं हंटिंग करूंगा, दैट इज नोन एज पोचिंग. सो पोचिंग किसके लिए करते हैं? मीट के लिए. अगर किसी वाइल्ड एनिमल को मार लिया तो उसका मीट हम लोग बेच सकते हैं, उसका स्किन बेच सकते हैं, उसका फर, फॉर एग्जाम्पल शीप के फर में से स्वेटर बनाते हैं, हॉर्न्स बहुत बेचे जाते हैं, एक्सेट्रा. तो ये सब चीज के लिए अगर कोई हंटिंग कर रहा है, पोचिंग कर रहा है, it leads to the decline of the number of wild animals. And wild animals जो है उनका नंबर कम हो जाएगा. Next is destruction of habitats. Again, what is habitats? It's important to know. Habitat यानी किसी भी एनिमल का एक नेचुरल घर. ओके, सो एक लायन का नेचुरल घर क्या है? जंगल. So destruction of habitats. So due to human activities like construction of dams, reservoirs, buildings, roads, railway tracks, mining activities, etc., the natural habitat of animals get destroyed. अगर एक फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट उनका घर है, उसमें से अगर आधा फॉरेस्ट को काट के हम लोग रेलवे का ट्रैक बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो उनका घर छोटा हो रहा है, राइट? अगर उनका घर छोटा हो रहा है, उनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके वजह से भी plant and animal species can be endangered. Okay, so this is the first part of the answer. Next is we're continuing the answer. Other causes में क्या क्या हो सकता है? यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, एटसेट्रा. ओके, फार्मास्यूटिकल्स इज बेसिकली मेडिसिन. ओके, इंजेक्शन बनाने होंगे तो कभी कभी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में से कुछ चीजें ली जाती है. ओके, सो दैट इज फार्मास्यूटिकल्स. परफ्यूम्स यू ऑल नो. कॉस्मेटिक्स यानी तुम लोग का मेकअप का सामान. सो मेकअप के सामान में कभी कभी स्पेशल एनिमल और प्लांट्स के पार्ट्स को यूज किया जाता है. एंड लास्टली मेडिसिन, हमारे बहुत सारी दवाइयों में भी उनको यूज किया जाता है. सो इन सब चीजों की वजह से भी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी एंडेंजर्ड. लास्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था? इसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं? सो द आंसर इज एंडेंजर्ड एनिमल्स कैन बी सेव्ड बाय द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग द पोल्यूशन कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स. अगर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो एनिमल का जो स्पीशीज है उनके लिए अच्छा होगा. नेक्स्ट, हैबिटेट्स ऑफ द स्पीशीज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस शुड बी लिमिटेड. स्पीशीज का जो घर होता है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसमें हम लोग को उनके घरों में जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, यूज ऑफ इको फ्रेंडली रिसोर्सेज. अभी रिसेंटली गणपति का सीजन आ रहा है, राइट? गणेश चतुर्थी आने वाला है. सो एवरीवन विल ब्रिंग गणेश मूर्ति इन योर हाउस. और वो गणेश मूर्ति घर पे लाने के बाद विसर्जन में हम लोग वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्ति बना होता है उसको ऐसी सी में फेंक देते हैं. सो पिछले कुछ सालों से इको फ्रेंडली मूर्ति भी आने लग गया. सो अगर वो तुम लोग सी में डालोगे तो सी को हार्म नहीं पहुंचेगा, फिर कम हार्म पहुंचेगा. सो हमेशा इको फ्रेंडली चीजें यूज करनी चाहिए जिससे एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म ना हो. ओके,
एंड लास्टली पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। पब्लिक अवेयरनेस यानी पब्लिक को बताना, उनको एडुकेट करना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट environmental protection और वो क्यों important है. So that will come under public awareness. So this was the answer to that question. Let us move ahead. Question number 4. How will you justify that overcoming the pollution is a powerful way of environmental management? अगर environment को manage करना है, तुम लोग क्यों बोलोगे कि pollution को कम करने से फर्क पड़ने वाला है? Okay. Again, let us quickly dive into the answer. First is pollution affects the environment adversely. Pollution की वजह से environment को बहुत ज़्यादा problem होता है. Next, environmental pollution is a major concern because of harmful effects it has on environment as well as on health of humans. Environmental pollution के harmful effects है किस पे? दोनों पे. एक तो environment पे तो harmful effect है ही pollution का. Second, अपने humans के health पे भी बहुत ज़्यादा affect होता है. अभी भी आज के तारीख में दुनिया भर में so many people die of diseases because of pollution. Pollution की वजह से उनको बीमारी होती है और उसकी वजह से मर जाते हैं. हजारों लोग आज भी मरते हैं रोज pollution की वजह से. So environmental pollution has harmful effects on both environment as well as human health. Next, impact of pollution is severe in developing countries, leading to ill health, death and disabilities in people. सो एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश इज अ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री. सो इन सब कंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है पोल्यूशन का. और क्या प्रॉब्लम होने वाला है? इल हेल्थ, हेल्थ खराब होगी, बहुत लोग मर सकते हैं. देयर कैन बी डेथ्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड पीपल कैन बी डिसेबल्ड. ओके, डिसेबिलिटी भी आ सकती है लोगों में. Developed countries have powerful ways of environmental management as they have resources as well as technologies to combat pollution. Developed countries को इतना problem नहीं होता pollution का. क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, resources यानी basically पैसे, as well as technologies to combat pollution. उनके पास technology भी अच्छी होती है. So अगर एक वो लोग ने नया फैक्ट्री बनाया तो उसको, उस फैक्ट्री में से जो कुछ भी वेस्ट निकलने वाला है उसको ट्रीटमेंट करने वाली बहुत अच्छी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वो लोग ला सकते हैं. वो लोग बहुत अच्छे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं. वो लोग बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर, विंड पावर के प्लांट्स लगा सकते हैं. सो उनके पास बहुत सारा पैसा, उनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है. सो पोल्यूशन का उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना डेवलपिंग कंट्रीज को फर्क पड़ता. नेक्स्ट, अगेन द आंसर इज कंटिन्यूड हियर. ओके, सो reducing pollution will help reduce production of toxic waters, thereby saving the cost of disposal of waters. अगर pollution ही कम होगा तो जो हार्मफुल, टॉक्सिक यानी क्या? जो जहरीला होता है, टॉक्सिक यानी जहरीला. सो जो कुछ भी टॉक्सिक वेस्ट है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन ही कम कर रहे हैं तो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो भी कम हो जाएगा. पर टॉक्सिक वेस्ट कम हो गया तो जो वेस्ट को ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और उसको अच्छे से फेंकने के लिए जो जो कॉस्ट आते हैं वो हम लोग सेव कर सकते हैं. जो कुछ भी खर्चा होता है उसको अच्छे से सेफली फेंकने का, उसका कॉस्ट हम कम कर सकते हैं. और कैसे कम कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द पोल्यूशन. ओके, द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज ऑन द इफेक्ट the ultimate effect of pollution is on the existence of living organisms. सबसे एंड में किसको फर्क पड़ रहा है पोल्यूशन से? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पड़ रहा है और उनके एग्जिस्टेंस पे. उनको अगर जिंदा रहना है तो पोल्यूशन उनके लिए अच्छा नहीं है. लास्ट पॉइंट, वी एज स्टेक होल्डर्स ऑफ एनवायरमेंट. स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? स्टेक होल्डर्स यानी जिनको फर्क पड़ सकता है एनवायरमेंट से. ओके, सो हमको एनवायरमेंट से फर्क पड़ सकता है. सो वी आर स्टेक होल्डर्स. So we as stakeholders of the environment need to come together to overcome pollution. Okay, साथ में जब तक आएंगे नहीं तब तक pollution को हम लोग हरा नहीं पाएंगे. It will preserve our precious environmental resources and improve the environment quality. हमारे environment में जो कुछ भी resources है वो preserve होंगे, बचे रहेंगे and improve environment quality. Environment का quality बेहतर हो जाएगा. इसीलिए thus overcoming pollution is a powerful way of environmental management. So because of all these reasons, अगर pollution को control करोगे तो environment बहुत easily manage हो जाएगा. Last question for this chapter and last question for the day is write a short note on disaster and its management. So let us quickly dive into the answer. So सबसे पहले हमें पता करना होगा ये डिजास्टर होता क्या है. Okay, so definition of disaster is
The dangerous events that occur many times in the environment and cause human, material, economic and or environmental loss are called disasters. Okay, so what are disasters? सबसे पहली बात वो एक dangerous event है और इससे क्या होता है, किस किस को तकलीफ पहुंचती है, ह्यूमंस को तकलीफ पहुंचती है, मटेरियल यानी बिल्डिंग्स हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती है, प्लेग्राउंड होता है, इन सबको ये सब मटेरियल में आएगा। इकोनॉमिक पैसों का बहुत ज्यादा लॉस होगा और एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। सो डेंजरस इवेंट जिसमें ह्यूमंस, मटेरियल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लॉस होंगे उसको बोलेंगे डिजास्टर्स। ओके, सो इसके एग्जांपल्स क्या है? फ्लड्स, फैमिन्स हमने ऑलरेडी देखा है, साइक्लोन्स, मुंबई बाल बाल बचा एक साइक्लोन से, and earthquakes. Okay, these are the examples of disasters. So disasters again are of two types. One type is natural disaster, second type is man-made disaster. Third point is the impact of disasters depends on the duration of disasters or their after effects. दो चीजों पे डिपेंड करता है, ओके, कि कितना फर्क पड़ेगा डिजास्टर की वजह से। फर्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द डिजास्टर, ड्यूरेशन यानी कितने टाइम के लिए था। ओके, सो अगर समझो साइक्लोन यहाँ मुंबई से आके जा रहा है, सो साइक्लोन मुंबई में कितने टाइम के लिए था? 1 घंटे के लिए था, 2 घंटे के लिए था, एक पूरे दिन के लिए था, उससे फर्क पड़ सकता है। एंड सेकेंड, आफ्टर इफेक्ट्स, एक बार वो डिजास्टर यहाँ से चला जाता है उसके बाद क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स हो गए, फ्लड्स के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक अगर अर्थक्वेक होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स यानी होने के बाद। सो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि डिजास्टर से कितना प्रॉब्लम होने वाला है। सो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर तो हम लोग ने देख लिया पहले 3 पॉइंट्स में। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स और मेकिंग अरेंजमेंट्स टू फेस इट। या तो डिजास्टर होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए तुम लोग मेजर्स ले लो, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, ऐसे अरेंजमेंट्स करके रखो कि अगर डिजास्टर आ गया तो हम लोग उसको फेस करने के लिए रेडी है। ओके, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डिजास्टर आने से पहले क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेइंग अलर्ट एक्सेट्रा। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम लोग अलर्ट होने चाहिए कि तुम लोग न्यूज देख रहे हो क्या, न्यूज में जो जो बोल रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो क्या, ये सब डिजास्टर के पहले। ओके, एंड सेकेंड क्या है, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर होने के बाद क्या क्या कर सकते हो। सो रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होता है पूरे कंट्री में तो वहां पे आर्मी पहुंच जाती है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आर्मी के सोल्जर्स को वहां पे पहुंचा देते हैं एंड देन दे स्टार्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कोई भी फंसा है उनको निकालते हैं। सो ये सब कब होता है? डिजास्टर होने के बाद होता है। सो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट्स टू फेस इट। उसमें भी 2 टाइप्स, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आने से पहले क्या क्या कर सकते हो, एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर आने के बाद क्या क्या कर सकते हो। ओके, so this was your final answer for the chapter. We are at the end of the chapter. These are the words we learned today. First we saw pandemic. Pandemic is basically a disease in a whole country or the world. Endemic is restricted to a certain place. Drought is long period of low rainfall leading to shortage of water. Famine is extreme scarcity of food. And last we had seen poaching any illegal hunting or capturing of wild animals. So we are done with the chapter, but just make sure ki y'all are not just copying the notes and giving the quizzes, but you're also by hearting all the answers, especially the end of chapter questions. You all should by heart all the examples. You all need to by heart for objectives. What else should you all by heart? I think the major 2 things are these only. First is end of chapter questions you all should by heart. Second is you all need to by heart small cell definitions and examples so that you all can answer the objectives very well. And lastly, you must have noticed कि इस chapter में बहुत सारे tables थे. Within your textbook itself, you all will say there are 2-3 tables. So a question based on completing the table is highly expected from this chapter. So इस chapter में जितने भी tables दिए textbook में, make sure you all thoroughly know this, know those tables, और कोई भी table को तुम लोग वापस बिना देखे बनाना आना चाहिए. Okay, so that's it for today. Tomorrow onwards we will start a new chapter. Okay, see you guys. Bye.